ایک بادشاہ اپنے وزراء اور امراء کے ساتھ سلطنت سے شکار کو نکلا۔ یہ لوگ کئی دن تک جنگل میں شکار کھیلتے رہے۔ ایک دن اچانک یوں ہوا کہ بادشاہ کے سامنے چند ہرن نظر آئے اور تیزی سے بھاگنے لگے۔ بادشاہ نے تنہا ان کے تعاقب میں اپنا گھوڑا لگا دیا۔ ہرن اتنے تیز رفتار تھے کہ گھوڑا تیز دوڑنے کے باوجود ان تک نہ پہنچ سکا۔ بادشاہ تیر پہ تیر چلاتا رہا لیکن کوئی بھی تیر نشانے پر نہ لگا۔ ہرن لگاتار بھاگتے رہے۔ بادشاہ کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا رہا۔ اب اسے محسوس ہوا کہ اپنے ترکش کے سارے تیر وہ چلا چکا ہے۔ خالی ترکش کے ساتھ اب ہرنوں کا تعاقب فضول تھا۔ اس پر تکلیف دہ بات یہ تھی کہ بادشاہ اپنے ساتھیوں کو کئی کوس پیچھے چھوڑ کر آگے نکل آیا تھا۔ ہرنوں کو مار گرانے کی دھن میں وہ یہ بھول گیا کہ وہ کس راستے پر جا رہا ہے۔ اب اسے خیال آیا کہ یہاں سے واپسی کیسے ممکن ہوگی۔ سامنے خاردار جھاڑیاں تھیں یا جنگلی درختوں کے جھنڈ تھے۔ دور دور تک راستے کا کوئی نشان نہ تھا۔ اس نے ادھر ادھر بہت نظر دوڑائی لیکن کہیں بھی کوئی انسان نظر نہ آیا۔ اب وہ تھا اور اس کا گھوڑا۔ جب گھوڑے کی ٹانگوں پر اس کی نظر پڑی تو وہ جو دیکھ کر دھک سے رہ گیا کہ کانٹوں بھرے جنگل میں دوڑتے ہوئے وہ بری طرح زخمی ہو چکا ہے اور اس کا بے تحاشا خون بہہ رہا ہے۔ اس حالت میں وہ گھوڑے کو دوڑا بھی تو نہ سکتا تھا۔ البتہ اسے تسلی تھی کہ اس کے نیام میں تلوار موجود ہے جس سے وہ کسی جنگلی جانور کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ دن ڈھل چکا تھا۔ اس نے زخمی گھوڑے کی باگ ہاتھ میں تھام لی اور پیدل ہی بڑھنے لگا۔ اس نے 2 دن اور 2 راتیں سفر میں گزاری اور بالآخر جنگل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دوران نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا۔ جب تک جنگل میں تھا اسے کھانے پینے کا ہوش بھی تو نہ تھا۔ اب جو ویرانے سے باہر نکلا تو اسے بھوک اور پیاس نے ستانا شروع کر دیا۔ پیاس تو اس نے ایک جوہر سے چند چلو پانی پی کر بجھا ہی ڈالی، البتہ بھوک مٹانے کا کوئی سامان نہ تھا۔ جنگل سے نکل کر ابھی وہ 2-3 کوس ہی چلا ہوگا کہ اسے لہلہاتے کھیت نظر آئے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کیونکہ وہ بیابان سے نکل کر انسانوں کے جہان میں آ گیا تھا۔ مسلسل سفر اور بھوک پیاس کی شدت کے باعث اس کی شکل و صورت بہت بدل چکی تھی۔ درختوں اور جھاڑیوں میں متواتر الجھنے کی وجہ سے اس کا لباس بھی کہیں کہیں سے پھٹ گیا تھا۔ اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ بادشاہ ہے۔ چلتے چلتے اسے خربوزوں کا ایک کھیت نظر آیا۔ اس کی بھوک مٹانے کی ایک صورت تو نکل آئی۔ پکے ہوئے خربوزوں کا رنگ اتنا اچھا اور خوشبو اتنی تیز تھی کہ اس سے کھیت کی ساری فضا مہک رہی تھی۔ بادشاہ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کسان کھیت کے سرے پر کھڑا سخت پہرا دے رہا ہے۔ اس کے رعب کا یہ عالم تھا کہ کھیت میں کسی آدمی یا مویشی کو بھی دم مارنے کی ہمت نہ تھی۔ بہرحال بادشاہ نے بھی اپنی جی میں ٹھان لی کہ وہ ہر قیمت پر خربوزوں کے 2-4 دانے حاصل کر کے ہی رہے گا۔ وہ گھوڑے کی باگ ایک درخت سے اٹکا کر کسان کے پاس پہنچا۔ رسمی سلام دعا کے بعد بادشاہ نے اس سے پوچھا، یہ خربوزے کس کے ہیں؟ میرے ہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ کیا تم انہیں فروخت کرو گے؟ بادشاہ نے کہا، نہیں، یہ فروخت کے لیے نہیں ہے۔ کسان نے گرجدار آواز میں جواب دیا۔ تو پھر کس کے لیے ہیں؟ بادشاہ نے پوچھا۔ تم کیوں پوچھتے ہو؟ کسان نے اسی لہجے میں دوبارہ پوچھا۔ بھائی میرا جی چاہتا ہے کہ قیمت دے کر تم سے 2-4 خربوزے خرید لوں۔ بادشاہ نے قدرے نرمی سے کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم تو کیا یہ خربوزے کوئی بھی نہیں لے سکتا، بلکہ میں خود بھی نہیں لے سکتا۔ کسان نے زیادہ سخت لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر انہیں کیا کرو گے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ دیکھو، یہ خربوزے میں نے فقط بادشاہ کے لیے اگائے ہیں اور وہی انہیں کھا سکتا ہے۔ اس کے لیے میں نے دن رات پہرا دے کر یہ فصل پروان چڑھائی ہے، کسان نے جواب دیا۔
भाई जितनी कीमत तुम कहोगे मैं दे दूंगा, ज़्यादा नहीं तो एक ही खरबूजा तोड़कर मुझे दे दो। मैं गरीब मुसाफिर हूँ और कई दिन से सफ़र में हूँ, मुझे सख्त भूख लगी है, खुदारा मुझ पर रहम करो। बादशाह ने नरमी से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर तुम ऐसे ही मालदार हो तो जाओ मंडी में, वहाँ तुम्हें बहुत खरबूजे मिल जाएंगे। वहाँ एक से एक आला माल पड़ा हुआ है। मैंने अपने खेत के खरबूजे किसी को नहीं देने, एक बार कह जो दिया, ये सिर्फ और सिर्फ बादशाह के हैं। किसान गरज कर बोला। बादशाह ने एक और सवाल कर दिया, अगर बादशाह तुम्हारे ये खरबूजे कबूल न करे तो फिर क्या करोगे? ना करे कबूल, मुझे उसकी क्या परवाह हो सकती है, कबूल कर ले तो ठीक, ना करे तो उसकी भी ऐसी की तैसी। किसान बरहम होकर बोला। अब बादशाह के पास इसके सिवा कोई चारा न था कि भूखे पेट वहाँ से रुखसत हो जाए। वो कोस भर चला होगा कि उसके साथ ही उसे तलाश करते हुए वहाँ तक आ पहुँचे। बादशाह दारुल सल्तनत में वापस आ गया। किसान से मुलाकात का वाक़या जब भी उसे याद आता, उसे दिल ही दिल में हंसी आती। वो शिद्दत के साथ किसान की आमद का मुंतज़िर था। एक दिन दरबार लगा हुआ था। उमरा, वज़रा और सल्तनत के बड़े बड़े हुक्काम बादशाह की खिदमत में हाजिर थे। शाही चौबदार, दरबान और पहरेदार होशियारी से अपने अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। इतने में बादशाह की नज़र दरवाजे की तरफ उठी तो उसने देखा कि एक किसान गधे पर बहुत बड़ी बोरी लादे खड़ा है। दरबान उसे अंदर आने से रोक रहा है, लेकिन वो दरबार में दाखिल होने पर इसरार कर रहा है। बादशाह ने चौबदार को हुक्म दिया कि फिलफोर जाओ और दरवाजे पर खड़े शख्स को उसके गधे समेत लेकर आओ। इस हुक्म के सुनते ही वो किसान को दरबार में ले आया। किसान ने बादशाह के सामने आते ही सीना तान कर हाथ माथे पर ले जाकर खालिस देहाती अंदाज में सलाम किया। बादशाह ने उसका सलाम का जवाब देते हुए उससे पूछा, इस बोरी में क्या है? किसान ने कहा, ये खरबूजे हैं, मैंने सिर्फ आपके लिए बोए थे। जब पककर तैयार हो गए तो बोरी में भरकर यहाँ ले आया। अब चाहता हूँ कि आप उन्हें कबूल कर लें और मुझे वापस जाने की इजाज़त दें। देखो, अगर मैं तुम्हारे खरबूजे कबूल न करूँ तो तुम क्या करोगे? बादशाह ने सवाल किया। इस पर किसान के दिल में खटका पैदा हुआ कि ये सवाल तो पहले भी कोई शख्स मुझसे कर चुका है। उसने दिल में सोचा है। उसे खेत में पेश आने वाला वाक़या याद आ गया। गौर से बादशाह की तरफ देखा तो उसका चेहरा मेहरा, नाक नक्शा बिल्कुल उस शख्स के जैसा लगा जो उसके खेत में मिल चुका था। बादशाह ने किसान को सोच में गुम पाया तो उसने अपना वही सवाल फिर दोहराया, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? मैंने तुमसे कहा ना कि अगर मैं ये खरबूजे कबूल न करूं तो फिर तुम क्या करोगे? किसान बिला झिझक बोला, तो फिर वही करूंगा जो उससे पहले खेत में कह चुका हूं। इस जवाब पर बादशाह मुस्कुराया और उसने हुक्म दिया कि बोरी से खरबूजे निकाल लिए जाएं और उसमें अशरफियाँ और जवाहरात भरकर किसान को लौटा दी जाएं। किसान ने अपने ख़ास अंदाज में बादशाह का शुक्रिया अदा किया और गधे पर बोरी रखकर खुशी खुशी दरबार से वापस हो गया। जब किसान रुखसत हो गया तो वज़ीर आगे बढ़ा और सलाम के बाद अर्ज़ गुज़ार हुआ, अगर बादशाह सलामत ने इसी तरह की सखावत जारी रखी कि एक बोरी खरबूजों की कीमत एक बोरी अशरफियाँ और जवाहरात की सूरत में अदा करते रहे, ख़जाने का खुदा ही हाफिज़ है। किसान की खुशी को चंद सौ अशरफियाँ भी बहुत थीं। अगर हजूर वाला बुरा न माने तो अर्ज़ करूं कि एक मामूली से किसान को इतनी बड़ी दौलत अता फरमाकर आपने कुछ अच्छा नहीं किया। ये खानाजाद सल्तनत का खैर ख्वाह है, जहाँ कमज़ोरी देखेगा, जहाँ पना को इससे आगाह करेगा। आगे हजूर खुद रोशन ज़मीर हैं, भला बुरा खूब जानते हैं। वज़ीर की बात सुनकर बादशाह यूँ मुखातिब हुआ, तुम हमारे वज़ीर बातदबीर हो, जो करना था हमने किया। अब तुम जाकर दानिशमंदी को काम में लाते हुए वो सब कुछ वापस ले आओ जो हमने किसान को दिया है। वज़ीर घोड़े पर सवार हुआ, उसे तेज़ दौड़ाकर किसान को रास्ते में ही जा लिया और हुक्मी अंदाज में कहा, ठहरो ठहरो। किसान रुक गया। क्या है?
मन भर खरबूजे देकर तुम इतनी भारी दौलत लिए जा रहे हो, ये नहीं हो सकता। वजीर ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? ये दौलत मुझे तुमने तो नहीं दी, बादशाह ने दी है। किसान ने अपने ख़ास लहजे में जवाब दिया, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं वज़ीर सल्तनत हूँ। ये दौलत तुम चंद शराइत के साथ ले जा सकते हो। वज़ीर बोला, अगरचे मेरे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं कि तुम कौन हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि मैं तुमसे इस सिलसिले में बात करूँ। ये मेरा और बादशाह का मामला है। बहरहाल शर्तें बताओ। पहले मेरे 3 सवालों का जवाब दो। वज़ीर ने कहा, मेरा पहला सवाल यह है कि आसमान पर कितने तारे हैं? किसान ने गधे की पीठ पर हाथ मारा और कहा, जितने इस पर बाल हैं। इसका कोई सबूत? वज़ीर ने पूछा। दोनों को गिन लो, अगर एक भी कम पड़े तो मैं कसूरवार। किसान ने जवाब दिया। फिर वज़ीर ने लाजवाब होकर दूसरा सवाल कर दिया, बताओ ज़मीन की नाफ कहाँ है? किसान के पास एक छोटी सी बर्छी, जिसे वो लाठी के तौर पे इस्तेमाल किया करता था। उसने वो बर्छी ज़मीन में गाड़ कर कहा, ये रही ज़मीन की नाफ। चारों तरफ से ज़मीन को माप लो, ज़र्रा बराबर भी कम निकले तो मैं कसूरवार हूँ। उसका भी वज़ीर के पास कोई जवाब न था। वज़ीर ने तीसरा सवाल किया, खुदा इस वक्त क्या चाहता है? किसान ने कहा, तौबा तौबा, खुदा की इस हालत में कैसे बात हो सकती है कि तुम एक आला नस्ल के घोड़े पर सवार हो, निहायत कीमती लिबास पहने हुए हो। मैं एक मामूली दर्जे का किसान, फटे पुराने कपड़ों में मरियल से गधे पर बैठा, जो डिचकों करके चलता है और मुश्किल से दिन भर में 2 कोस फासला तय करता है। भला इस हालत में मैं खुदा के बारे में क्या बात कर सकता हूँ? मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। वज़ीर ने कहा, अपने सवाल का जवाब चाहते हो तो एक काम करो। किसान ने कहा, वो क्या? वज़ीर ने पूछा। वो ये कि तुम घोड़े से नीचे उतरो, अपना लिबास मुझे दो और मेरे कपड़े तुम पहनो और इस गधे पर सवार हो जाओ। फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देने के काबिल हो सकता हूँ। मैं तुम्हें बताऊँगा कि खुदा इस वक्त क्या चाहता है। वज़ीर घोड़े से नीचे उतर आया। किसान ने वज़ीर का लिबास पहना, वज़ीर ने किसान के कपड़े पहने और गधे पर बैठ गया। किसान ने झट से गधे से बोरी उठाई और लपक कर वज़ीर के घोड़े पर सवार हो गया। अशरफियों और जवाहरात से भरी बोरी सामने रखी और एड़ लगाकर घोड़े को दौड़ा दिया। जाते जाते उसने वज़ीर से कहा, खुदा इस वक्त ये चाहता है कि मैं तुम्हारा लिबास पहने इस शानदार घोड़े पर सवार होकर बादशाह की अता की हुई दौलत के साथ अपने गांव वापस जाऊं और तुम मेरे कपड़ों में मलबूस उस गधे पर बैठकर दरबार में लौटो। क्या समझे?